In our today's lecture, we will study how to add like and unlike fractions. Okay? Chapter number 5, exercise 5E. First sum of the exercise number 1 is 5 upon 8 and 1 upon 8. Okay, we have to add the given two fractions 5 upon 8 and 1 upon 8. As you can see, the denominators of the fractions here are equal or same. So these two are like fractions. Okay. Now I will explain you how to add like fractions. तो like fraction को ऐड करने के लिए आपके पास जो कॉमन डिनोमिनेटर है same, वो आपको लिखना है one time, and then we will have to find out the sum of the numerators. That is 5 plus 1 is equals to 6 upon 8. Okay, don't you forget to write down the denominator ones. Denominators आप like fractions में या non-like fractions में ऐड नहीं करते हो, वो कॉमन होता है, इसलिए आप सिर्फ उसको एक बार दिखा दे हो, and then you will have to find out the sum of the numerators only. Okay, so this is the answer, and now see if this answer is in the lowest term or reduced term or not. Okay, on observing this fraction, we will be able to know that this fraction is not in the lowest term. So what will we do? We will divide its numerator and the denominator by the HCF, that is 2 here. Okay, 6 and 8 का जो HCF है उसके साथ में फ्रैक्शन डिवाइड करूंगी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर to find out the reduced or the lowest term. Okay, now first number sum I have done, second you will do on your own. Okay, third number I am doing, in which you are given mixed fractions, one integer 3/5 and two integer 4/5. सेकेंड नंबर सम आप खुद करोगे एंड थर्ड नंबर मैं करा रही हूँ प्लस 2 इंटीजर 4/5 इज इक्वल्स टू, आपके पास दो ऑप्शंस है यहाँ पे सम करने के लिए. ओके, ऑप्शन क्या है कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस के इंटीजर्स को अलग ऐड कर दो एंड रिमेनिंग जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको अलग से ऐड करो. ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऑल टुगेदर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया है उसमें से पहले आप उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो एंड देन जो फ्रैक्शंस आपको मिल रहा है कन्वर्ट करने के बाद उनको आप ऐड करो. ओके, ये आपके ऑप्शंस है दो आपके पास. नाउ आई विल सजेस्ट यू to convert this mixed fraction into an improper one first. आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो मैं आपको करवा रही हूँ. 5 ones are 5 and 5 plus 3 will be 8. आपको मिक्स्ड में से improper कैसे करना है वो हमने अगली एक्सरसाइज में ऑलरेडी देख लिया है. What will we do? 5 ones are 5 and 5 plus 3 will be 8. That is 8 upon 5 plus 5 ones are 10 and 10 plus 4 14 upon 5. ये दोनों हो गए improper fractions from the mixed one. Now we will add them as number 1 only. 8 plus 14 upon 5 is equals to 22 upon 5. Now see, you are given the question in the mixed fraction form, so you will have to write down the answer in the mixed fraction form as well. ओके, 22 upon 5 को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे ये मिलेगा. ये कैसे मिलेगा आपको मैंने ऑलरेडी बताया है. मैं 22 upon 5 ऐसे तो डिवाइड करूंगी, मुझे ये मिलेगा. ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट
फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया है एक्सरसाइज नंबर 5D में, जब हम कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस कर रहे थे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तब हमने एलसीएम लेके उनको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे भी हम सेम मेथड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 9 and 6. See, I know the LCM of 9 and 6 directly, so I will write down it directly. But if you don't know the LCM of given numbers, then you will have to find out the LCM in rough. Okay? पहले आप रफ वर्क करके उसका LCM फाइंड आउट करोगे और फिर आप उसको यहाँ पे लिखोगे। First of all, what will you write down? LCM of 9 and 6. Mind where you have to find out the LCM of denominators, not numerators. Okay? 9 and 6 का LCM 80 होता है, मुझे पता है, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने LCM ऑलरेडी आपको सेकेंड चैप्टर में सिखा दिया है, so I will not repeat it right now. Okay? 2/9 इसके डिनोमिनेटर में 18 कैसे आएगा वो आपको देखना है, ठीक है। एंड वन मोर फ्रैक्शन 5/6 इसके डिनोमिनेटर में 18 कैसे आएगा वो आपको देखना है। क्यों 18 ही लाना है? क्योंकि 18 इसका एलसीएम है, इसलिए डिनोमिनेटर में 18 आना जरूरी है। 9 के टेबल में 18 कब आता है? 9 2s are, then what will we multiply the numerator by 2? 2 2s are 4. 5/6 6 के टेबल में 18 कब आता है? 6 3s are। तो ये हो गया आपका दूसरा फ्रैक्शन। अब आप देख सकते हो हमने दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 4 + 15/18 is equals to 19/18. So this is question number 4 where we have added the unlike fractions. Unlike fraction को ऐड करने के लिए आपके पास जरूरत है LCM की, फिर उसको like fraction में कन्वर्ट कर लो and then as the simple addition of fractions that this way will do. Okay? Now next, number 4 I have done on the board. Now I will do number 6. 5 number you will have to try to find out on your own. 6 number is 4/15 and 17/15. Sorry, 17/20. 4/15 plus 17/20. अब आपको क्या करना है? LCM of 15 and 20 फाइंड आउट करना है। LCM of 15 and 20 is equals to 15 and 20 का LCM क्या होता है ये मुझे डायरेक्टली मालूम है, इससे मैं लिख लेती हूँ। If you don't know then you will have to do the method of LCM and find out first. Okay? आपको LCM की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको एग्जाम में ज्यादा अनलाइक क्वेश्चंस पूछूंगी, लाइक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछूंगी। ओके? 15 and 20 का LCM 60 होता है, मैंने फाइंड आउट कर लिया, मतलब मुझे पता था। ओके? अब मैं फाइंड आउट द LCM आई विल एक्सप्लेन यू। 15 and 20 है, उसको प्राइम फैक्टराइज कर दो। 3 5s are 15 and 5 1s are 5. 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. Now see, 2 times 2 हम कंसीडर करेंगे, 1 times 5 and 3. ओके? LCM में जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो फैक्टर प्राइम फैक्टर होता है वो हम गिनते हैं, तो हम यहाँ पे 2 2 5 and 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2s are 4, 3s are 5, 5s are 60. Okay? Which I had already written. 60 is the LCM. Now denominator में LCM कैसे आएगा? उसके लिए आप इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाओगे, ठीक है। ये जो आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हैं उनको आप इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 15 के टेबल में 60 कब आता है? 4 से। ओके, तो ये हो गया आपका एक फ्रैक्शन। ओके, 20 के टेबल में 60 कब आता
51 upon 60, 67 upon 60, ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसको आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे, 67 एंड 60 जो है वो कॉमन टेबल में नहीं आएंगे क्योंकि आई थिंक 67 इज द प्राइम नंबर। सो नाउ नेक्स्ट नंबर 7 आई एम डूइंग। प्राइम फैक्टर्स सॉरी इस बार लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, डिवाइड इसको आप अगर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला भी राइट है एंड मिक्स्ड वाला भी अगर आपको मिला है देन इट इज राइट। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 I am doing, and with the same method you will try to do 8 and 9 numbers on your own. Okay, 7 number on the board for all of you. Two integer 3 upon 4 plus 5 integer 5 upon 6. 2 integer 3 upon 4 plus 5 integer 5 upon 6. ये देख लो, आप जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिए हैं तो उनको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 2 are 8 plus 3 11 upon 4 plus 6 5 are 30 plus 5 35 upon 6। तो ये हो गए आपके दोनों improper fractions। अब आप LCM of denominators that is 4 and 6 here, LCM of 4 and 6 is equals to 12। okay, as I know the LCM I have written it directly, but you will do it roughly and find out the LCM। 11 upon 4 and 35 upon 6 ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट मींस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, जहां पे आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम टू सेम नंबर से इधर मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो। ठीक है, एंड यहां पे भी सेम थिंग इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है दोनों को। 4 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 सा। ओके, 11 3 सा 33, 6 2 सा and 35 2 सा। Now see, I have obtained these two like fractions. Now I can add them. 33 plus 70 upon 12. 33 plus 70 कितना होता है, 103। 103 upon 12. Now you can see ये दोनों जो है ऑलरेडी रिड्यूस्ड टर्म में है क्योंकि ये 103 है वो किसी और टेबल में 12 के साथ कॉमनली जाएगा नहीं। ओके, तो ये रिड्यूस्ड है तो इसको खाली आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। 12 8 जा 96, 12 9 जा 98। ओके, एंड 98 प्लस 5 कर देंगे। So this is the answer, 9 integer 5 upon 12. Okay, if you wish me to repeat the method of converting improper to like mixed, then I will show you the method. Divide करोगे 12 8 जा 96, 5 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो 5 रिमाइंडर है वो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बनेगा, डिनोमिनेटर will be left as it is and the quotient will come in the place of integer। Well, 8 are 96 and 7. Okay, 7 remainder will be there in numerator। Okay, I have mistaken to write here, I am doing the correction now। 12 8 are 96, 7 will be the remainder will be the numerator in the mixed fraction, 12 the denominator will remain as it is and the quotient will come in the place
place of integer in mixed fraction. Okay, so this is the addition of unlike mixed fractions. 8 and 9 नंबर सेम टू सेम ये मेथड करके आपको खुद क्या करना है, 10 नंबर में करवा रही हूँ, ठीक है। Number on the board for you. 3 integer 2 upon 3 plus 1 integer 5 upon 6. 3 integer 2 upon 3 plus 1 integer 5 upon 6 plus 2. Okay? आपको दो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, उनको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 3 3 are 9 plus 2 11 plus 6 1 का 6 plus 5 11 upon 6 plus 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप उसको 1 कंसीडर करके चलोगे, ठीक है। 2 के लिए भी आपको डिनोमिनेटर तो चाहिए ही होगा, तो आप अपने हिसाब से वहां पे 1 लिख लोगे। नाउ वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3 6 and 1. LCM of 3 6 and 1 equals to 6 होगा LCM। अब जो तीनों फ्रैक्शंस हैं उनको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 11/6 के पास ऑलरेडी 6 है डिनोमिनेटर में, इसलिए आप उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। यू विल कीप इट एज इट इज, जैसे वो है वैसे ही उसको आप रहने दोगे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी LCM नंबर डिनोमिनेटर में है। नाउ द लास्ट वन 2/1 1 के टेबल में 6 का आता है 6 are. So this is the last one. And here 3 के टेबल में 6 का आता है 2 are. These three fractions we will add now. 22 plus 11 plus 12. Upon 6. 2 plus 1 3 plus 2 5. 1 3 4. 45 upon 6. Now these two will come in three's common table. So we will divide them by 3. Okay. 3 के टेबल में 45 कब आएगा तो 15 सा, and 3 के टेबल में 6 कब आएगा 2 सा। 15/2 और 15/2 को अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो हो जाएगा 7 integer 1/2. Okay, this is the question number 10. 11 नंबर एंड 12 नंबर, सॉरी 11 नंबर आप खुद करना 10 नंबर के हिसाब से। मैं आपको करवा रही हूँ 12 नंबर। We'll do 12 number on the board. Okay? 11 की जो मेथड है उसके लिए आप 10 नंबर की मेथड को रिकॉर्ड करोगे। 3 integer 1/3, 4 integer 1/4 and 6 integer 1/6. Three threes are 9 plus 1 10. Okay, 10/3. 4 fours are 16 plus 1 17/4. 6 6 are 36 plus 1. 37/6. Now the LCM of 3, 4 and 6. Is equals to 12. 10/3, 17/4 and 37/6. इन तीनों को मैं इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी। 3 के टेबल में 12 का आता है 4 सा, 10 4 सा 40। 4 के टेबल में 12 का आता है 3 सा। 6 के टेबल में 12 का आता है 2 सा।
ये तीन आपको फ्रैक्शंस मिलते हैं, तीनों लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम तीनों को प्लस कर पाएंगे 40 प्लस 51 प्लस 74 अपॉन 12 0 plus 1 plus 4 5 9 plus 7 16 165 upon 12। अब ये दोनों हैं वो कॉमन टेबल में जाएंगे। कौन से कॉमन टेबल में जाएंगे कैसे पता चलेगा? HCF फाइंड आउट करके। ओके, सबसे पहले जब आप एडिशन अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन स्टार्ट करते हो तो आपको LCM चाहिए एंड व्हेन यू फिनिश द एडिशन you will need the HCF of the fraction, that is 165 upon 12। इन दोनों का क्या होगा? 3 HCF। ओके, 3 5s are 15 and 3 5s are 15 and 3 4s are 10। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे 4 5 upon 4। ओके, ये मैंने कन्वर्ट किया है मिक्स्ड फ्रैक्शन। Number I have done on the board and now I am doing directly number 15. According to the method of 15 number, you will try to solve 13 and 14 on your own. Okay, 15 number sum को देख के 13 and 14 number खुद करो, ठीक है? 2 3 upon 4 1 integer 5 upon 8 plus the last one is 3 integer 7 upon 16। First of all, we will convert the given fractions into proper or improper one। Okay, 2 के पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए उसको हम 1 गिनेंगे। 3 upon 4 is there, 8 plus 15 5 will be 13 upon 8 and the last one 48 plus 7 will be 55। Okay, these are the 4 fractions to be added। Okay, आपको 15 नंबर के सम में ये 4 फ्रैक्शंस ऐड करने के लिए दिए। अब आप देखो, हम एलसीएम करेंगे डिनोमिनेटर्स का। यहाँ पे एलसीएम करेंगे 1 4 8 एंड 16 का, ठीक है? 2 upon 1 3 upon 4 13 upon 8 and 55 upon 16 के पास ऑलरेडी एलसीएम नंबर डिनोमिनेटर में है तो हम उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। 1 के टेबल में 16 कब आता है? 16s are, okay, and 2 16s are 32। 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4s are, 3 4s are 12। 8 के टेबल में 16 कब आता है? 2s are, and 13 2s are 26। ये हो गए आपके 4 इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस है इसलिए आप सबको ऐड कर पाओगे, ठीक है? 32 प्लस 12 प्लस 26 प्लस 55 अपॉन 16। डिनोमिनेटर कॉमन है इससे 4 बार अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार 16 लिख दोगे तो कॉमन डिनोमिनेटर चारों न्यूमरेटर्स को मिलेगा, ठीक है? 2 plus 2 4 4 plus 6 10 and 10 plus 5 15। 1 will be carried, 5 plus 1 6 plus 2 8 8 plus 1 9 and 9 plus 3 will be 12। 125 upon 16। एक नंबर जो है वो 5 का मल्टीपल है एंड दूसरा 2 का मल्टीपल है तो ये दोनों साथ में कोई मैचिंग टेबल में जाएंगे नहीं, इसलिए डायरेक्टली आप इनको कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है?
7 integer 13 upon 16. 16 sevens are 112 plus 13 will give you 125. So this has become your final answer now. 7 integer 13 upon 16. 15 number sum कर लिया मैंने. Now we'll see the next number 16. Rohit bought a pencil for rupees 3 integer 2 upon 5 and an eraser for rupees 2 integer 7 upon 10. Find what is the total cost of both the articles? रोहित ने दो चीजें खरीदी अलग अलग, उन दोनों के अलग अलग प्राइसेस आपको दिए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो टोटल के लिए आप क्या करते हो? एडिशन. ओके, एडिशन करना है आपको. दो खाली फ्रैक्शंस आपको दिए हैं. यहाँ पे नंबर स्टोर या वर्ड प्रॉब्लम सम है, इसलिए हम स्टेटमेंट लिख के करेंगे. ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट लिख के सम इनिशिएट करके दे रही हूँ, स्टार्ट करके दे रही हूँ, एंडिंग तक सम आप करके जाओगे. ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड cost of an eraser, rupees 3 integer 2 upon 5 and 2 integer 7 upon 10. ये हो गए आपने दो आंसर्स. ठीक है, दो नंबर्स. अब आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है. देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीस, इन दोनों का प्लस करोगे. ठीक है, 3 इंटीजर 2 अपॉन 5 एंड 2 इंटीजर 7 अपॉन 10. जो प्लस करने के बाद आपको जो आंसर मिला है वो ही है टोटल कॉस्ट. तो ये वाले जो सम्स है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिए हैं. ठीक है, 3 इंटीजर 2 अपॉन 5 को पहले आप क्या करोगे? मिक्स्ड में सेकंड प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे. तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 5 एंड ये हो जाएगा 27 अपॉन 10. अब एलसीएम करके आपको सम खुद कंप्लीट करना है. 5 एंड 10 का एलसीएम क्या होगा एंड हाउ विल द सम प्रोग्रेस दैट यू विल सी. ओके, खत्म, आप इसको खुद करोगे. स्टार्टिंग मैंने आपको करके दिया है. Now you will finish the sum. 17 number, Sohini bought 4 integer 1/2 meters of cloth for her kurta and 2 integer 2/3 meters of cloth for her pajamas. Okay? अब आपके पास बाकी और दो ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस नहीं, डिटेल्स. ओके, स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ एंड सम आप खुद करना. ठीक है, 17 नंबर, cloth purchased for kurta and cloth purchased for pajamas. Four integer 1/2 meters and 2 integer 2/3 meters. ओके, इनका हम यहाँ पे ही इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लोगे तो नीचे आपको नहीं करना पड़ेगा. 9/2 एंड 3 2 6 plus 8/3. टोटल क्लॉथ परचेस्ड, यहाँ तो क्लॉथ in all is equals to 9/2 plus 8/3 meters. अब बाकी जो सम है इसको कंप्लीट करोगे. 18 number, while coming back home from his school, Kishan covered 4 integer 3/4 kilometers by rickshaw and 1 integer 1/2 kilometers on foot. What is
स्टेटमेंट लेके दे रही हूँ, सन आप खुद करना। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय Ishan on by rickshaw 4 integer 3 4 kilometers. Integer 3/4 meters, that is 19/4 kilometers. And distance covered on foot. पैदल चल के कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है और कितना ऑटो रिक्शा में बैठ के कवर किया है, वो आपको दो डिटेल्स दिए हैं। आपको टोटल डिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। 1 integer 1/2 kilometers, that is 3/2 kilometers. Total distance from in school to home, ये आपको सम जो है कंप्लीट खुद करना है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिख के आपको स्टार्टिंग करके दिए हैं, कंप्लीट आप खुद करोगे। 19/4 + 3/2 किलोमीटर्स। यहाँ पे जो सम आगे जा रहा है वो आप आगे लेके खुद जाओ। ठीक है, now the last one, number 19, the weight of an empty gas cylinder is 16 integer 4/5 kilograms and it contains 14 integer 2 kilograms of gas. What is the weight of the cylinder filled with gas? Okay, number 19 जो है वो कंप्लीटली मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ठीक है, उसमें भी आपको अल्टीमेटली करना तो एडिशन ही है, लेकिन स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे वो आप खुद डिसाइड करना। ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स मैं आपको लिख के दे दी जाऊंगी, तो यू विल नेवर गेट द प्रैक्टिस टू राइट डाउन द स्टेटमेंट्स इन अ नंबर स्टोरीज, सो इट इज बेटर फॉर यू टू ट्राई एट लीस्ट वन ऑन योर ओन। ओके, नंबर 19 के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 5E खत्म हो रही है यहाँ पे, एंड आवर लेक्चर फॉर टुडे एज वेल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।